ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वडाए। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारेओ, आज आपां जपजी साहिब जी की 6वीं पौड़ी की विचार करांगे। मालक सच्चे पिता वाहिगुरु गुरु नानक पातशाह अंग संग हाजिर हो के दास तो इस तुर की बाणी अमृत बाणी दी विचार आप करवा लैन। दास दी कोई औकात नहीं कि इस ब्रह्ममयी बाणी दी विचार कर सके। मालक सच्चे पिता वाहिगुरु आप सुमत बख्शन, आप कृपा करन। जिवें गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने गूंगे तो अर्थ करवाए सन, मालक सच्चे पिता वाहिगुरु आप कृपा करन। दास तो
ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ, ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਇ ਕਰੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ, ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਜ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਫਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਜੇਤੀ, ਜੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਰਠ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਫਲ ਪਾਏਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੀਜ ਤੈਨੂੰ ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਭਾਵ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਭਾਲੀਏ ਅੰਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ,
बिन कर्मा के मिलै लई, बिना कर्मा तो कुछ नहीं। अगली गल कर रहे ने इस पंक्ति दे विच आपां नूं अपने कर्मां प्रति होश च रहण दी गल कर रहे ने। मैं बेनती करां, कर्म दे तीन पहलू ने। पहला पहलू मन दे लैवल ते, मन दे पद्धर ते है, सोच दे पद्धर ते है। दूसरा पहलू कर्म दे पद्धर ते है, काम कर्म दे उपर। तीसरा पहलू उस दे इंपैक्ट दे उपर है कि ओदा दूसरे जीव ते की प्रभाव पिया। मान लो कि मैं मन दे अंदर ही अंदर सोच रहा कि किसी नाल नफरत कर रहा या किसी दे प्रति वैर रख रहा, हुण ये अंदर ही चल रहा है, विचार चल गया, तो प्यारिओ ये सूक्ष्म कर्म बन गया। ये सूक्ष्म बेशक एक कर्मा करके इंद्रियां करके बाहर नहीं आया, लेकिन अंदर कर्म बन गया, अंदर मन दे विच एक घर कर गया सूक्ष्म पद्धर ते। उस तो बाद जिस व्यक्ति दे नाल, जिस मनुख दे नाल मेरा वैर विरोध आ, वो मनुख सामने आण ते मैं उस दे प्रति कोई रिएक्ट कीता, कोई एक्ट कीता, चाहे मूँह दे नाल बोल उसनूं मंदा बोल बोलिया, चाहे हथां दे नाल उस नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये दूसरा पहलू हो गया, ये दूसरा लैवल है। ते तीसरी लैवल की गल आ जाती है कि तुसी जो कीता, मैं जो कीता, जिस दे विरुद्ध कीता, उस दे मन नूं किन्ना ठेस पहुंचिया। सो प्यारिओ, ये कर्म प्रति सुचेत होने की गल कर रहे ने गुरु नानक पातशाह। भाई बंदिया, अपने कर्मा प्रति सुचेत हो जा। कर्म चंगे होणगे ते किरपा दृष्टि दे विच आ सकदा है। जे कर्म माड़े ने ते मालिक दी किरपा दृष्टि दे विच नहीं आ सकदा। तीर्थां ते इशनान करन दा तां ही फायदा है जे तू ओदी किरपा दृष्टि च। तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान। बेशक जिन्ने मर्जी तीर्थ कर, तप कर, दयालु हो जा, दान करी जा, लेकिन जे उस किरपा दृष्टि दे विच नहीं आया ते तिल का मान, एक तिल मात्र भी इहदा फायदा नहीं। सो तीर्थ नहाण दा फायदा तां जे पहला किरपा दृष्टि च आ गए। फिर अगली गल कर रहे ने कि प्यारिया, अपने जीवन दे विच ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ। अपने कर्मा प्रति, अपने विचारां प्रति सुचेत हो जा। जाग, देख के अंदर की चल रहा। आप साक्षी हो के देख के अंदर विचार की चल रहे हैं, इहदा इंपैक्ट की होएगा। तीसरी पंक्ति दे विच गुरु नानक पातशाह कह रहे ने, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। मत विच रतन जवाहर माणिक। मत कहते ने सोच, मत कहते ने बुद्धि। हुण कहते तेरी मत दे विच रतन ते जवाहर ते माणिक, कीमती रतन मोती जवाहर
आ जाणगे। किदां आ जाणगे? जे एक गुर की सिख सुनी, जे किसे गुरु दी तू गल मन के, जे किसे संत दी, महात्मा दी, साधु दी गल मन के उस प्रीतम प्यारे नू मिलन लई अपने अंदर तड़प पैदा करके उसनू अमली रूप दे विच कमाना शुरू कर दिता ते तेरी सोच शुद्ध हो जाएगी, तेरे विचार शुद्ध हो जाणगे। ते हुण जिहड़ी रतन जवाहर मानक दी गल कीती जा रही है प्यारिओ, ये कह रहे ने गुरु नानक पातशाह कि तेरे अंदर सच, दया, संतोख, प्रेम जैसे अनमोल गुण पैदा हो जाएंगे। ये ने रतन जवाहर मानक। मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी। प्यारिया तेरी सोच दे विच आ शुभ गुणां दा वासा हो जाएगा, सचियार हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, सहज दे विच जीना सीख जाएगा, सबर संतोख आ जाएगा, प्रेममयी हो जाएगा, नफरत खत्म, ईर्ष्या खत्म, द्वेष खत्म। ते गुरु, संत, महापुरुष, मास्टर, टीचर कुछ भी कह ला प्यारिया, वो तेरे जीवन नू इस तरीके नाल ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, इस तरीके नाल बदलाव लाएगा कि तू ही सत चित आनंद हो जाएगा, तू ही सत चित आनंद हो जाएगा। सो बड़ी महत्वपूर्ण तीसरी पंक्ति दे विच गुरु नानक पातशाह गल कर रहे ने कि भाई प्यारिया ओ मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। ओ भाई गुरु दे लड़ लग जा, गुरमुख बन जा, किसी साधु संत महापुरुष की संगत करनी शुरू कर दे ते उसनू पुछ जाके ऐसा बादशाह बन जाएगा। ये जो तू माया, जिसनू माया समझ रहा, ये माया नहीं, असल कमाई वो नाम दी है। ये जड़े महल ये कोई फायदा नहीं। जे वो सच्चा नाम धन मिल गया ते फिर प्यारिया बादशाहियत मिल गई, फिर कखां दी कुली भी वो स्वर्ग बन जाता है। भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए, कित ही काम न धौल हर जित हर बिसराए। कह रहे ने पंजवें पातशाह कहते ओ भली सुहावी छापरी, कहते मैनू ते ओ छप्पर कखां दी कुली ही चंगी लगती है। क्यों चंगी लगती है? जिथे बैठ के मैं उस प्रीतम प्यारे दे गुण गा रहा, जा मैं गुण गा। कित ही काम न धौल हर, ये धौल हर कहते ने महलां नूं, चवारियां नूं, बड़े बड़े मकानां नूं, ये किसी काम दे नहीं कहते। क्यों कहते? जित हर बिसरावे। ये महल, ये चवारे तुसी प्यारे जाके वेखियो, जेड़े तानू इस दुनिया ते अमीर नजर आते ने वो महा कंगाल ने, कख नहीं भले। सो कित ही काम ना धौल हर जित हर बिसरावे। सो गल ए आ कि जिन्नी देर तक मत विच रतन जवाहर माणक नहीं आए, बादशाहियत नहीं आ सकती। ते जे प्यारिया बादशाह बनना,
जे आनंद दे विच रहना है ते फिर गुरु दी गल मन, गुरमुख बनना पऊगा। गुरमुख बनेगा, गुरु, उस्ताद, मास्टर, संत, महापुरुष जो मर्जी समझ, वो तेरे जीवन नू आनंद नहीं बना देगा। अगली पंक्ति दे विच गुरु दी वडियाई दर्शा रहे ने गुरु नानक पातशाह, कहते ने गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। हुण कहते ने गुरु ने मैनू ये समझ लियाती, मेरे अनुभव दे विच ये समझ पा दी, मैनू ये अनुभव करा दिता कि कहते सारे जीवां दा इको ही दाता, भाव जरे जरे दे विच मालक आप बैठा। जे प्यारिओ सप दी देह देख रहे हो ते परमात्मा सप दे रूप दे विच प्रगट है। जे प्यारिओ शेर दी देह देख रहे हो ते परमात्मा शेर दे रूप दे विच बैठा है। जे हाथी दी देह देख रहे हो ते मालक हाथी दे रूप दे विच है। कीड़ी देख रहे हो ते परमात्मा कीड़ी दे रूप दे विच नजर आंदा है। दरख्त परमात्मा की कृपा दृष्टि जो होंदी है ते फिर दरख्तां दे विच मालक प्रभु नजर आंदा है। पंछियां दे विच परमात्मा नजर आंदा, पंछी दे रूप दे विच। किसने ये नजरिया बख्श दिता, किसने दृष्टि बख्श दी? प्यारे गुरु की वडियाई है। ये गुरु ने कृपा की। केड़े गुरु ने? पूरे गुरु ने, सच्चे गुरु ने, पूरे गुरु ने। पूरा गुरु कौन है? पूरा गुरु प्यारे वो होता है जो उस परमात्मा दे नाल एक मिक होया होया है, ब्रह्म लीन है, जो उस शब्द दे विच समाया होया है, एक मिक होया होया है और दूसरे नू भी एक मिक कर सकता है। गुरा एक दे बुझाई, दे कहते ने बुझारत नू, बुझाई हल कर देना। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। कहते मैनू मेरे गुरु ने ये सोझी पा दी कि ये सारे जीव तू जो देख रहे हैं ये सारे उस परमात्मा दे ने, ये सारे उस परमात्मा का ही रूप ने, ते मैं उस तो किते विसर ना जावां। जिस गुरु ने आ खेड़ बना दी, ऐसी कृपा दृष्टि देती, ऐसी नजरिया बख्श दिता कि ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, एको एक वखाणिए। ब्रह्म तो अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा। जे कोई जीव बोल रहा है तो ब्रह्म बोल रहा है, जे कोई पंछी गा रहा है तो ब्रह्म गा रहा है। सो प्यारिओ पहला तीर्थ इशनान करन तो पहला जे किते उस मालिक दी कृपा दृष्टि किते हो जावे, उस प्रीतम प्यारे नाल किते सांझ पै जाए, ते फिर प्यारिओ तीर्थ इशनान करन दा, तीर्थ यात्रा करन दा आनंद ही अलग है। सो प्यारिओ ये 6वीं जपजी साहब की 6वीं पौड़ी सी। कल नूं आपां 7वीं पौड़ी दी विचार करांगे, जिस विच गुरु नानक पातशाह ने मनुख नूं समझाया कि भाई तू भावें जिन्ना मर्जी इस संसार से वड्डे रुतबे ते बैठा है, जां तेरी जिन्नी मर्जी वड्डी उम्र हो जावे,
पर वो गल नहीं वो बननी जिन्नी देर तक उस कृपा दृष्टि दे विच नहीं आया। सो अज दी 6वीं पौड़ी दी विचार करदियां दास तो बेअंत गलतियां हो गई ने। अनजान बच्चा समझ के माफ करना, आप संगत बख्शण योग हो। कृपा करे सच्चे पिता वाहिगुरू दातार पिता जी होइयां गलतियां भुलां चुकां नूं ना चेतावदे होए रहमत करनी मेहर करनी अगे तो समत बख्शनी प्यारिओ फतेह दी सांझ बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।